Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So now we will start our discussion with the mycotoxicosis of the domestic animals, an important topic from the veterinary mycology portion. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइकोटॉक्सिकोसिस ऑफ द डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स कि भाई कौन कौन से माइकोटॉक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिफरेंट डिजीज और कौन कौन सी फंगस इन्वॉल्व होती हैं फॉर द रिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर माइकोटॉक्सिन्स. What are the crop or the substrate where you will found those fungus that are releasing the mycotoxin and causing the different disease. Along with this, we will also study about the clinical findings as well as the different species that are being affected. We will use different mnemonics just to have a good grip over this topic. So now first of all we will discuss about the some important terminologies that you will encounter in this topic. So first one is the mycotoxin. A mycotoxin is a toxic secondary metabolite that is produced by the organisms of the fungus kingdom and is capable of causing the disease and death in both humans as well as different animals. Now the second term is the mycotoxicosis. So simply the mycotoxicosis are the acute and chronic poisoning caused by the mold toxin or you can say fungus toxins called the mycotoxins. ठीक है. So देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं mycotoxins क्या होते हैं. So simply a mycotoxin is a toxic secondary metabolite that is produced by the organisms of a kingdom fungus and is capable of causing the disease as well as the death in both humans and animals. देखो mycotoxins क्या होते हैं? टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. क्या है ये? टॉक्सिक सब्सटेंस है जिनका प्रोडक्शन हमारी कौन करती है? फंगस करती है. अब ये जो mycotoxins है दैट इज रिलीज्ड बाय द किंगडम फंगस, दे विल कॉज डिफरेंट डिजीज. अब ये माइकोटॉक्सिन अगर किसी ह्यूमन या किसी एनिमल के अंदर एंटर करते हैं तो डिफरेंट डिजीज कंडीशन से प्रोड्यूस्ड होंगी दैट मे बी प्रूव्ड फैटल, जिसकी वजह से किसी भी एनिमल और या तो ह्यूमन की डेथ हो सकती है. एंड दिस इज द माइकोटॉक्सिन. सेकेंड है हमारे पास माइकोटॉक्सिकोसिस. So simply they are the acute and chronic poisoning caused by the mold toxins or you can say fungus toxins called the mycotoxins. अब क्या हुआ कि जो हमारे mycotoxins था जिनका प्रोडक्शन हमारा फंगस करते हैं उनकी वजह से या तो acute या तो chronic poisoning हो जाए in animals as well as in humans, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? mycotoxicosis. ठीक है. So now moving on, we will discuss about the mnemonics for the mycotoxins first. So simply A, unidentified elephant. A stands for the alpha toxins B1, B2, G1, G2. U stands for the unidentified neurotoxins. E stands for the ergotamine, ergometrine and ergocristine. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द निमोनिक्स फॉर द माइकोटॉक्सिन्स, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, नंबर्स ऑफ माइकोटॉक्सिन्स अवेलेबल है एंड मेमोराइजिंग देम एक्यूरेटली एंड इफिशिएंटली इज क्वाइट टफ. इसलिए हम लोग क्या करेंगे? निमोनिक्स का यूज करेंगे. एंड मैंने सभी माइकोटॉक्सिन्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया एंड उनको मेमोराइज करने के लिए हमारे पास सेगमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट निमोनिक्स भी हैं. ठीक है. सो फर्स्ट सेगमेंट की निमोनिक है हमारे पास ए, unidentified elephant. अब A, U, E, these are the initials of the mnemonics and will help you to memorize the mycotoxins. तो A से हमारा क्या है? अल्फा टॉक्सिन्स. B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, G1 हो सकता है, G2 हो सकता है. अनआइडेंटिफाइड का इनिशियल वर्ड क्या है हमारे पास? U. U से क्या होगा? अनआइडेंटिफाइड न्यूरोटॉक्सिन्स. एलिफेंट का इनिशियल वर्ड क्या है? E. E से कौन से माइकोटॉक्सिन्स होते हैं? अर्गोटामाइन, ergometrine and ergocristine. ठीक है. So now moving on, the next segment of the mnemonics is students, that stands for the sporidesmin. Eat, that stands for the ergovaline.
food in the class that stand for the fumosins B1, B2, A1, A2. ठीक है। सो देखो भाई, नेक्स्ट सेगमेंट के माइकोटॉक्सिन्स के लिए हमारे पास निमोनिक है स्टूडेंट्स ईट फूड इन द क्लास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का इनिशियल एस दैट विल गिव यू द माइकोटॉक्सिन नेम एज स्पोरिडेस्मिन। ईट का इनिशियल है ई दैट विल स्टैंड्स फॉर द अर्गोवलाइन। फूड इन द क्लास का एफ जो है हमारा इनिशियल दैट विल स्टैंड्स फॉर द फ्यूमोसिन्स। B1 भी हो सकते हैं, B2 भी हो सकते हैं, A1 भी हो सकते हैं और A2 भी हो सकते हैं। ठीक है, so now moving on to the next segment of mnemonics for the different mycotoxins available, the 4I that stands for the derivative of the 4-ipominol. Eat pi, the pi stands for the fumosins A, B, O, orca toxins ABC, Zezas it's too yummy and stands for the Ziralimon. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे द निमोनिक फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द माइकोटॉक्सिन्स एंड निमोनिक है 4I eat pie, O Jesus, and for Jesus we will use Z instead of J. ठीक है, तो 4I से कौन सा माइकोटॉक्सिन होगा? द डेरिवेटिव्स ऑफ 4-ipominol. ईट से कोई भी माइकोटॉक्सिन नहीं होता। पाई के पी से कौन सा माइकोटॉक्सिन होगा? फोमोसिन्स ए और बी। ओ के ओ से कौन सा माइकोटॉक्सिन होगा? ऑर्का टॉक्सिन्स ए, बी और सी। और जीजस के जेड से कौन सा माइकोटॉक्सिन होगा? जीरालिनोन। ठीक है, so now moving on we will discuss about the mnemonics for the different disease that is caused by the different mycotoxins available, and this mnemonic is just in the serial order of the mycotoxin mnemonic that you just read about. So now the mnemonic for the disease of the different mycotoxins in the serial order, and the first segment of the mnemonic is a death event. A stands for the alpha toxicosis, D stands for the diplodocus and E stands for the ergotism. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the mnemonic for the different disease that is caused by the different mycotoxins available. ठीक है, जितने भी माइकोटॉक्सिन्स हैं वो हमारी किंगडम फंगस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये माइकोटॉक्सिन्स ह्यूमन या एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड प्रोड्यूस द डिफरेंट फैटल कंडीशंस। ठीक है, तो अब हम उन डिजीज के बारे में बात करेंगे एंड मेमोराइजिंग दीज डिजीज इज क्वाइट टफ, सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ द निमोनिक्स। ठीक है, अब ये जो डिजीज है जिनकी मैं निमोनिक्स आप लोगों को बताऊंगा, दे विल बी देयर इन द सेम ऑर्डर। जिस तरीके से हमने माइकोटॉक्सिन्स की निमोनिक्स को और डिफरेंट माइकोटॉक्सिन्स को 3 सेगमेंट में डिवाइड करके 3 डिफरेंट निमोनिक्स का यूज करा, सो सिमिलरली इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ माइकोटॉक्सिन्स हम रिस्पेक्टिवली उन डिजीज की बात करेंगे और उस निमोनिक्स की बात करेंगे फॉर द पर्टिकुलर डिजीज कि उस पर्टिकुलर माइकोटॉक्सिन से कौन सी डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है, ए से वहां पे क्या होता था? फर्स्ट नंबर पे अल्फा टॉक्सिन, और अल्फा टॉक्सिन कौन सी डिजीज करेगा? अल्फा टॉक्सिकोसिस। सो जो माइकोटॉक्सिन्स का ऑर्डर है और जो डिजीज का ऑर्डर है बिल्कुल सेम है, और आप लोगों को यहाँ पे शफलिंग नहीं करनी है व्हाइल मेमोराइजिंग। ठीक है, सो सिंपली फर्स्ट सेगमेंट ऑफ निमोनिक्स फॉर द डिजीज क्या है हमारे पास? ए डेथ इवेंट। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा टॉक्सिकोसिस। डेथ के डी से क्या होगा? डिप्लोडियोसिस। और इवेंट के ई से क्या हो जाएगा? अर्गोटिज्म। ठीक है, so now moving on into the next segment of the mnemonic for the different disease, and it is 4 that stands for the facial eczema, 4 that stands for the fescutoxicosis, of us all stands for the leukoencephalomalacia. So देखो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ निमोनिक फॉर द डिजीज की अगर बात करें तो निमोनिक है हमारे पास फॉर 4 of us all। ठीक है, तो 4 का जो F है इट विल स्टैंड फॉर द डिजीज नेम एज फेशियल एजीमा। 4 का जो F है इट विल स्टैंड फॉर द फेस्क्यूटॉक्सिकोसिस। ऑफ अस से हमारे पास कोई भी डिजीज नहीं है, और जो ऑल है उसका L से हमारे पास है ल्यूकोइंसेफेलोमलेशिया। ठीक है,
The next segment of the mnemonic for the different disease is M, that stands for the moldy sweet potato toxicosis. Next one is also M, that stands for the mycotoxic lupinosis. Next is O, that stands for the orca toxicosis. Next is also O, that stands for the estrogenism. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द निमोनिक फॉर द डिफरेंट डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंट माइकोटॉक्सिन। और जो निमोनिक है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से एम एम ओ ओ। तो इसको सिंपली याद करने का एक तरीका है एम स्क्वायर ओ स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले एम से क्या हो जाएगा, मोल्डी स्वीट पोटैटो टॉक्सिकोसिस, आपको शफलिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट वाले एम से क्या हो जाएगा, माइकोटॉक्सिक लुपिनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वाले ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्का टॉक्सिकोसिस। और नेक्स्ट वाले ओ से क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजेनिज्म, ठीक है। सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द निमोनिक्स फॉर द माइकोटॉक्सिन्स एंड द रिस्पेक्टिव डिजीज साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू हैव अ गुड ग्रिप ओवर दिस टॉपिक। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी माइकोटॉक्सिन्स हैं दैट आर रिलीज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगस। किंगडम फंगस के जो भी मेंबर्स होते हैं वो माइकोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। अगर ये माइकोटॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ह्यूमंस या एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो दे विल प्रोड्यूस द डिफरेंट डिजीज कंडीशंस, इजंट इट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास माइकोटॉक्सिन्स को याद करने के लिए निमोनिक था और डिजीज को याद करने के लिए जो निमोनिक था, उनको साइड बाय साइड देखेंगे कि भाई कौन से माइकोटॉक्सिन की वजह से कौन सी डिजीज होती है इन ऑर्डर टू हैव अ गुड ग्रिप, ठीक है। तो सबसे पहले सेगमेंट के माइकोटॉक्सिन की निमोनिक थी ए अनआइडेंटिफाइड एलिफेंट। और फर्स्ट सेगमेंट ऑफ डिजीज के निमोनिक क्या था हमारे पास, ए डेथ इवेंट, ठीक है। सो हमारे पास ए अनआइडेंटिफाइड एलिफेंट था हमारे पास माइकोटॉक्सिन्स का निमोनिक। तो ए से क्या था, अल्फा टॉक्सिन्स B1 B2 G1 G2। सो अगर अल्फा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, सो दे विल प्रोड्यूस ए डिजीज नेम एज अल्फा टॉक्सिकोसिस, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड के यू से क्या था, अनआइडेंटिफाइड न्यूरोटॉक्सिन्स। सो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस ए डिजीज कंडीशन नेम एज डिप्लोडियोसिस, ठीक है। एलिफेंट के ई से कौन सा माइकोटॉक्सिन था, अर्गोटमाइन, अर्गोमेट्राइन एंड अर्गोक्रिस्टिन। और इवेंट के ई से कौन सी डिजीज थी, अर्गोटिज्म। सिंपली या तो अर्गोमेट्राइन या अर्गोटमाइन या अर्गोसिस्टीन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सो दे विल प्रोड्यूस अ डिजीज कंडीशन नेम एज अर्गोटिज्म, ठीक है। So now moving on, the next segment mnemonic of the mycotoxins and the disease are. So next segment के mycotoxin के mnemonic है हमारे पास the students eat food in the class। और disease की mnemonic क्या है, for four of us all, ठीक है। तो student के S से कौन सा mycotoxin है, sporodesmin। So अगर ये sporodesmin हमारी बॉडी में एंटर करता है तो it will produce a disease condition named as facial eczema। ईट के ई से कौन सा माइकोटॉक्सिन है, अर्गोवलाइन। और अगर अर्गोवलाइन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इट विल प्रोड्यूस द फेस्क्यू टॉक्सिकोसिस। ऑफ अस से हमारे पास कोई भी डिजीज के लिए निमोनिक नहीं था, ठीक है। फूड इन द क्लास के एफ से कौन सा माइकोटॉक्सिन है, फ्यूमोसिन्स B1 B2 A1 A2। सो अगर ये बॉडी में एंटर करते हैं तो कौन सी डिजीज होगी, ल्यूकोइंसेफेलोमलेशिया। और ये ल्यूकोइंसेफेलोमलेशिया कहां पे है, ऑल के एल से, ठीक है। So the next segment of the mnemonic for the mycotoxins and the disease are, for mycotoxin it is like 4I eat pie oh Jesus, and for the disease it is MMOO। और इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, that is M square O square, ठीक है। सो माइकोटॉक्सिन की जो हमारे पास निमोनिक है 4I, तो 4I किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ 4-आइपोमिनॉल, ठीक है। अगर डेरिवेटिव ऑफ 4-आइपोमिनॉल जो कि एक माइकोटॉक्सिन है हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस अ डिजीज कंडीशन। और कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करेगा, मोल्डी स्वीट पोटैटो टॉक्सिकोसिस, ठीक है। ईट से हमारे पास कोई भी माइकोटॉक्सिन नहीं था। पाई के पी से कौन सा माइकोटॉक्सिन है, फोमोसिन ए और बी। अगर फोमोसिन ए और बी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो दे विल प्रोड्यूस अ कंडीशन नेम एज माइकोटॉक्सिक ल्यूपिनोसिस, ठीक है। ओह के ओ से कौन सा माइकोटॉक्सिन है, ऑर्काटॉक्सिन्स ए बी सी। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इट विल प्रोड्यूस अ डिजीज कंडीशन नेम एज ऑर्काटॉक्सिकोसिस, ठीक है। जीसस का जो जेड है, ठीक है, उससे कौन सा माइकोटॉक्सिन था, जीरालिनॉन। अगर ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इट विल प्रोड्यूस अ
कंडीशन नेम एज ईस्ट्रोजेनिज्म। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, आप लोग को याद करना है कि जो हमारी फंगस है वो माइकोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करती है। अब ये माइकोटॉक्सिन हमारी ह्यूमन या एनिमल बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस अ डिजीज कंडीशंस। ठीक है, तो सिंपली इन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स में आपसे माइकोटॉक्सिन भी पूछ सकता है डायरेक्टली, डिजीज भी पूछ सकता है और रिलेट करके पूछ सकता है कि भाई इस वाले माइकोटॉक्सिन से कौन सी डिजीज होती थी। ठीक है, सो आपको माइकोटॉक्सिन भी याद करने हैं, डिजीज भी याद करनी है और इनको कंपैरेटिव स्टडी भी करना है कि भाई इस वाले माइकोटॉक्सिन से ये वाली डिजीज होती है। ठीक है, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.